कर्नाटक के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी अपोजिशन जमातें इत्तेहाद की कोशिश करती हुई नजर आईं। हालांकि तकरीब में यूपी के साबिक सीएम अखिलेश यादव, मायावती का कोई नहीं पहुंची, ना उनकी चर्चा का वो सबब बना रहा। इससे पहले कल तमिलनाडु में भी अपोजिशन के कई लीडरान पहुंचे थे। रियासत के साबिक सीएम एम करुणानिधि के मुजस्समे की नकाबकुशाई के मौके पर डीएमके ने एक तजवीज भी पेश कर दी। पार्टी के सदर एम के स्टैलिन ने 2019 में पीएम ओहदे के लिए राहुल गांधी को बेहतर बताया। सोनिया गांधी की मौजूदगी में स्टैलिन ने यहां तक कहा कि राहुल गांधी के पास पीएम मोदी को शिकस्त देने की कुव्वत है। इस मौके पर उन्होंने सभी अपोजिशन जमातों के साथ साथ आने की अपील की। हालांकि स्टैलिन के इस तजवीज पर कोई तरह का रद्देअमल बहुत ज्यादा सामने नहीं आया, लेकिन कई लीडरान ने एतराजात जरूर जताने की उनकी खबरें सामने आई। हम आभारी हैं माननीय स्टालिन जी के, जिन्होंने कांग्रेस के और देश के करोड़ों लोगों की मंशा को व्यक्त किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्री राहुल गांधी एक अखिल भारतीय नेता के आधार पर हर कांग्रेस वर्कर चाहता है कि वो नेतृत्व करें। लेकिन मैं विनम्रता के साथ ये भी कहूंगा कि खुद राहुल गांधी जी ने कहा है कि अभी हमको साथ मिलकर लड़ना है, नेतृत्व की बात नहीं करनी है, और जब उपयुक्त समय आएगा आंकड़ों के आधार पर निश्चित रूप से नेतृत्व संभालने का मुद्दा उठेगा। राहुल गांधी जी की जो सोच रही है इस देश में वापस भाईचारे का, प्यार का, अहिंसा का माहौल बने और इकबाल बने पॉलिटिक्स के अंदर। अभी जो हालात हुए हैं देश के अंदर उसमें घृणा का माहौल है, नफरत का माहौल है, अविश्वास का माहौल है, हिंसा का माहौल है। तो छुटकारा कैसे मिले? तो महागठबंधन की जो शुरुआत हुई है, ऑल पार्टी इकट्ठी हुई है, सबने संकल्प किया कि देश आज खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। ऐसे वक्त में हम किस प्रकार से लोकतंत्र को बचाने के लिए सब एकजुट हों, चाहे वाले हमारे आपस में डिफरेंसेस भी होंगे नीतियों के, उसको अलग रख करके एकजुट होकर महागठबंधन बनेगा और वो कामयाब होगा, मैं कह सकता हूँ आपको। People who have been talking about or giving out feelers that there will be chances of crack or any kind of problem between the alliance of DMK and the Congress, I think this reaffirms that Sonia ji and Rahul ji both have flown down from Delhi to be part of this event and to pay respects to the late chief of TMK, Dr. Kalingya. So this shows the amount of respect they have towards the party as well as the kind of respect they have always had for Dr. Kalingya. And I think they should, let people keep quiet and say that, whoever has been expecting that there kind of be some kind of tremors within the alliance, I think they should rest well now. And there's absolutely not, because, the kind of graciousness Rahul ji has shown that his name was not on the invite, but despite that, he wanted to show his respect and he has come down. It is a good development. It is need of the situation. The situation that prevails in the country demands that all secular democratic forces, including left, should come together in order to save democracy, in order to save the constitution, in order to save the nation. And the recent elections have shown people have gone through such an experience. They have started rejecting BJP. And it is victory for secular democratic forces. I hope the momentum, the people will continue this fight, and BJP will be rejected and country will be saved. That's what one should understand. It's a huge moment for all of us. Madam Sonia Gandhi is going to unveil the statue of our great leader, Dr. Kalingya. They both shared the wonderful camaraderie. Both of them together wrote the history of contemporary India from 2004 to 2013. It was an emotional moment since Madam Sonia Gandhi was not able to be present at the funeral of our great leader Dr. Kalingya. There is a big anti-BJP mood
amongst the people because they've destroyed their livelihoods. It is not about rabid Hindutva. It is also about the destruction of the livelihoods. A lot of lives were lost by the policies followed by the BJP, engineered by the BJP. So people have understood that the BJP cannot govern the state. They don't have that competence. And this has become evident in the 3 states' results in the Hindi heartland. This will be replicated in the 2019 elections also. So this is what we have been predicting, and our predictions are becoming true now. So this momentum will definitely be continued and ensure that the BJP is out of power in 2000. तो अपोजिशन जमातों के जमावड़े पर जहां बीजेपी ने तंज किया है, तो वहीं एआईएडीएमके ने हवाई इसको करार दिया। हालांकि तमिलनाडु पहुंचे बीजेपी एमपी शत्रुघ्न सिन्हा करुणानिधि कुंबे की तारीफ करते हुए नजर आए। अब देखिए, हमने कई ऐसे मीटिंग्स देखे हैं। तो 11 तारीख के मीटिंग पार्लियामेंट शुरू होने के पहले भी 10 तारीख को था, उसमें कई लोग नहीं पहुंचे हैं। तो देखते हैं कौन कौन जाता है। बट लेकिन अब तक जो एकता के नाम पर जो कवायद चल रही है, ये ड्रामा ज़्यादा और हकीकत कम दिख रही है। अभी भी सपा बसपा वो उस सरकार को मदद दिए हैं, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके वहाँ रहना, उनकी मौजूदगी एक्सपेक्टेड है। यदि जाते हैं तो उनके सरकार के समर्थन के लिए जा रहे हैं, यदि नहीं जाते हैं तो बड़े सवाल खड़े हो जाएंगे। We already have seen one Mahagठबंधन and which never got any gas into it. It never even went out of the taxiing runway. So now this is the second Mahagठबंधन which they are trying to talk about, and I think one Gathbandhan mein one party itself has fallen flat. Now if you ask me, Chandrababu Naidu has fallen flat with his political dynamics in Telangana, and his alliance has been routed in TRS in Telangana. मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, लेकिन उससे पहले मैं भारत की जनता का हूं, और भारत की जनता का होने के नाते मैं आया हूं। आप मुझे जिस कैपेसिटी में देखना हो देखें। मुझे अच्छा लगेगा कि मुझे आप अगर सबसे ज़्यादा इस परिवार के समर्थक, प्रशंसक, एडमायरर, सपोर्टर और ग्रेट वेल विशर के रूप में देखें। करुणानिधि जी के, स्वर्गीय लेट एंड ग्रेट करुणानिधि और उनके परिवार के, अपने सारे सदस्यों के दोस्त के नाते देखें तो ज्यादा अच्छा होगा। आज दिखाई पड़ रहा है, आज तमाम पार्टीज के लोग आए हुए हैं, चाहे कांग्रेस के हों या डीएमके के हों, कि और भी बहुत सारे लोग हैं। आपने देखा कि हमारा इतना बड़ा देश का और सिनेमा का प्राइड रजनीकांत भी थे और शिवाजी का परिवार भी था। आज इतने खुशबू, इतने अच्छे विद्वान लोग थे, जजेस थे, यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के लोग थे। तो सर्वदल प्रिय कई लोग डीएमके से सहमत हो या नहीं सहमत हो, इस बात से तो सब सहमत हैं कि डीएमके और करुणानिधि खासकर और स्टालिन, ये लोग सब ग्रेट की श्रेणी में आते हैं। राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद बीजेपी आज मुल्क भर में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है। कर्नाटक में जहां पार्टी तर्जुमान संबित पात्रा कांग्रेस पर हमलावर नजर आए, तो वहीं मुंबई पहुंची वजीर दिफा निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस सदर पर आवाम को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। बीजेपी के दावों पर सवाल उठाते हुए जेडीएस ने कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद से घबराकर ऐसा किया जा रहा है। अगर वाकई में बीजेपी सही है तो जेपीसी से क्यों डर रही है। इस मामले को लेकर आरजेडी भी बीजेपी पर हमलावर नजर आई। The core issue of a writ petition. So the writ petition which went to the court, to the Supreme Court, wanted the court to look into matters relating to the process which was followed for the procurement of these aircrafts, the price that was paid, and the selection of the Indian offset partner. These were the three main points of the writ petition. The Supreme Court has come out very clearly stating that they don't find a reason for any more worries and have given a clear statement. The Congress party is probably unable to accept that in the last
nearly 5 years, under the leadership of Prime Minister Modi, a totally corruption-free government is running. So towards 2019, they don't know what is the issue on which they can attack, target, or even go to the people saying, you need a change because they've been a very corrupt government or something. No, there is no case to be made out at all. ये उसी तरीके की बीजेपी हरकत कर रही है। एक देहात में कहावत है, खिस्सानी बिल्ली खम्बा नोचे। किसी के जश्न को कैसे खराब किया जाए, ये काम बीजेपी ने। 3 राज्यों में कांग्रेस के मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले हैं और संपूर्ण विपक्ष के नेता जो हैं उस शपथ ग्रहण समारोह में जाने वाले हैं। उससे ध्यान हटाने के लिए बीजेपी अपना एक और इवेंट मैनेजमेंट जो है कल करने जा रही। हमारे यहाँ बेंगलोर के अंदर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो सरकारी कंपनी है, उससे ठेका छीन करके आपने अनिल अंबानी की ऐसी कंपनी को, जिसको डिफेंस में कोई एक्सपीरियंस नहीं, 12 दिन पहले कंपनी रजिस्टर्ड होती है, उसको आपने जो है ठेका दे दिया। और 126 राफेल हवाई जहाज आने वाले थे, उसका सौदा होना था, 126 से घटा करके आपने 36 कर दिया। ये बहुत एक आम आदमी जो है इस चीज का जवाब मांग रहा है। ये जवाब सरकार दे दे, इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? I'll tell you very frankly, I moved it yesterday online. Important is being that the entire idea of privilege motion against Attorney General is what? The premise on which the observation have been made by the Honorable Supreme Court, the premise is no more there. You are talking of typographical error. It has happened for the first time in 70 years. I mean, Kamal ki sarkar. What are you up to? You are destroying everything. And that is why, through this motion, we would want Mr. Attorney General to respond to the queries that what are you trying to cover up in a sealed cover. तेलंगाना सीएम चंद्रशेखर राव के बेटे केटीआर ने आज बाजाब्ता तौर पर पार्टी कारगुजार सदर का ओहदा संभाल लिया है। इस मौके पर टीआरएस कारकुनान ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि रियासत के वजीर आला बनने के बाद केसीआर ने अपने साहबजादे को पार्टी की कमान देने का ऐलान किया था। वाज़ेह रहे कि असेंबली इंतखाबात में टीआरएस ने शानदार कारकर्दगी पेश करते हुए रियासत में दोबारा अपना परचम फहराया है। हालांकि इस दौरान भी केटीआर को सीएम बनाने की खबरें आ रही थी, लेकिन रियासत की बागडोर संभालने के बाद केसीआर ने अपने बेटे को पार्टी का कारगुजार सदर बना दिया। हाल ही में गज तूफान की तबाही झेल चुके तमिलनाडु और आंध्र में फिर साइक्लोन का साया दिखने लगा है। आंध्र प्रदेश के साहिली इलाके में फेथई नामी तूफान के टकराने से वहां तेज हवाओं के साथ बारिश भी शुरू हो गई है, जबकि इसका असर तमिलनाडु के साहिली इलाकों में भी दिखने लगा है, जिससे आने वाले 2 दिनों में भारी बारिश का खदशा जताया गया है। वाज़ेह रहे इससे पहले गज तूफान ने तमिलनाडु में भारी तबाही मचाई थी, जिसमें कई दर्जन लोगों की मौत भी हुई थी, जबकि बड़ी तादाद में रिहायशगाहों को नुकसान पहुंचा था। हालांकि इस बार इंतजामिया इससे निपटने का दावा कर रही है, जबकि महकमा मौसमियात इसके बाद बारिश और तूफान के इम्कान जाहिर करता नजर आ रहा है। Yesterday's deep depression has become a cyclone named as Pethai by yesterday evening by 12 GMT. It means 17:30 hours IST. And then onwards, so this Pethai is moved towards northwestwards and lay centered today by 8:30 hours IST. आर्मी चीफ जनरल विपिन रावत ने हैदराबाद में मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 94वें कॉन्वोकेशन तकरीब में शिरकत की। इस दौरान आर्मी चीफ ने कहा कि जब आपके सामने मुश्किलें आएंगी तो आपने इसका मुकाबला करने की हिम्मत होनी चाहिए। दुनिया में हर महान आदमी ने मुश्किलों और नाकामियों का सामना किया है। हमारे संस्थान की कामयाबी टीम वर्क पर डिपेंडेंट रहती है। Amongst you on a day which marks a significant milestone in the academic and professional journey of 67 officers
including 2 from the friendly foreign countries, mainly Rwanda, and 2 lady officers who are graduating today. Our congratulations to each one of you. In the same breath, I would also like to compliment your parents and wards, your instructors, guides, and above all the faculty. हैदराबाद पुलिस ने खवातीन पुलिस पेट्रोल स्क्वाड लॉन्च किया है। विमेन ऑन व्हील्स नामी ग्रुप का मकसद औरतों के साथ हो रहे जिनसी इस्तेहसाल के मामले पर काबू पाना है। उनकी हिफाजत को ध्यान में रखकर चलाए गए स्कीम में ज्यादातर खवातीन एहलकारों को शामिल किया गया है, जिसमें मंचलों से निपटने के लिए जरूरी सहूलियात भी फराहम की जाएगी। इससे पहले ये सहूलियात पुलिस स्टेशन तक महदूद थी, लेकिन इससे खवातीन को काफी राहत मिल सकती है। Women on Wheels patrolling system in Hyderabad city. 20 women constables have been handpicked for the job. उसके लिए 2 महीना ट्रेनिंग दिया गया है अनाम कोम्बाट में, देन ड्राइविंग स्किल्स में और टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग देके पेट्रोल्स देके अभी एक डिवीजन को एक पेट्रोल दिया गया है। वो लोग क्राइम प्रिवेंशन के लिए और ईव टीजिंग के लिए। अब सब लोग बोलते हैं ना कि लड़कियां कुछ कर नहीं सकते, ऐसा कुछ बोल के बोलते हैं, लेकिन मैडम हम लोग भी कुछ कर सकते बोल के अब इस तरीके से हम लोग को बाहर निकाले। जैसे कि अब कोई ऐसा बच्चे सता रहे कर रहे कुछ ऐसा हम लोग को मालूम हुआ तो आएंगे हम लोग। अगर जो हमको काम यहीं तक हो सकता, जैसे कि हमारे हद तक ही हो सकता, तो हम उन लोगों को वहाँ का वहाँ समझा के करके कुछ वो लोग को प्रॉब्लम नहीं हुए जैसा देखेंगे, या नहीं तो हम उन लोग को पुलिस स्टेशन ले लेके चले आ सकते। गुज़िश्ता दिनों बहरीन में हुए वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप में हैदराबाद के महबूब खान ने गोल्ड मेडल जीता है। मुल्क की तारीख में पहली बार वर्ल्ड मिक्स मार्शल आर्ट में किसी एथलीट ने गोल्ड मेडल जीता है। महबूब खान ने इस चैंपियनशिप के लिए रोज 6 घंटे प्रैक्टिस उन्होंने की। इंटरनेशनल मिक्स्ड मार्शल आर्ट फेडरेशन और वर्ल्ड मिक्स्ड मार्शल आर्ट एसोसिएशन ने इस चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें 50 से ज्यादा मुल्कों के 350 से ज्यादा एथलीट्स ने शिरकत की थी। महबूब खान ने जूनियर डिवीजन में यह खिताब अपने नाम किया। कर्नाटक के कलबुर्गी में बदला मौसम आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता हुआ नजर आने लगा है। तेज बरसात और बेहतर पानी निकलने का रास्ता नहीं होने की वजह से शहर की सड़कें पानी से लबरेज नजर आईं, जिससे आवामी कामों पर काफी असर पड़ा। बच्चों के स्कूल जाने से लेकर नौकरी पेशा लोग भी काफी परेशान नजर आए। हालांकि मकामी इंतजामिया पानी निकालने की कोशिश में लगा दिखा, लेकिन बरसात की वजह से सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। Yesterday, heavy rains are received. About 50 millimeters of rain is received. Due to heavy rains, due to small capacity of the drains, the water is flowing on the roads. Near fire station, one more drain has been constructed, but water is not moving in that because they have not made proper. Earlier, proper provision is not made for the diversion. Some small cement construction is to be made. With that, the water can be diverted to the newly constructed drain. If that is done, the water flow to the existing old earlier drainage can be prevented, and the water will not flow on the roads. Wherever required, after this flow is come down, immediately wherever whatever is small construction, these things are required, clearing of the drains, blockage, all these things, immediately will take steps to clear the blockage and also the drains. नेहरू यूथ तेलंगाना की जानिब से इंटर स्टेट कल्चर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर से आए तलबा ने अपने कल्चर की नुमाइश दिखाई। इस दौरान उन्होंने तेलंगाना के कई बातों में तेलंगाना को उन्होंने दरअसल बेहतर बताया। इस मौके पर सीनियर बीजेपी लीडर बंडारू दात्रे ने कहा कि मौजूदा हालात में ऐसे तकरीबात की जरूरत है ताकि पूरा मुल्क एक दूसरे को समझ सके। कश्मीर के हालात का जिक्र करते हुए दात्रे ने कहा कि वहां के नौजवानों को खासतौर से दूसरी रियासत की सखाफत को देखने की जरूरत है ताकि उन्हें अपने मुल्क की हकीकत का जमीनी अंदाजा
हो सके। हैदराबाद में, तेलंगाना में जो श्रीनगर वैली के नौजवान लोग यहाँ पर वहाँ के जो बहुत ही हिंसा चल रहे हुए जो प्रांतों से आए हुए नौजवान लोग यहाँ आकर यहाँ का गोलकोंडा को, चार मीनार को और यहाँ के इंडस्ट्रीज़ को, यहाँ के आईटी के डेवलपमेंट को देखकर वो लोग बहुत खुशी हो रहे हैं। वो लोगों में एक सद्भावना फैल रही है। यही सद्भावना, यही पैगाम कश्मीर वैली में पहुंचाकर एक शांति का वातावरण और भारत का एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए ये नौजवानों की शक्ति बहुत। और हम NYK के थ्रू यहाँ पे आए हैं और यूथ ट्रांसफ़र प्रोग्राम के थ्रू हम यहाँ आए हैं। तो यहाँ आकर हमें अच्छा लगा, यहाँ के लोग अच्छे लगे। तो एक चीज़ होता है कि क्या होता है कि यूथ एक्सचेंज के थ्रू हम ऐसा प्रोग्राम होता है कि यहाँ आके हम लोगों से मिलते जुलते हैं, उनका क्या कल्चर है वो हमें पता चलता है। और NYK के थ्रू हमने बहुत सारी प्लेसेस विजिट की, जैसे गोलकोंडा फोर्ट है, मक्का मस्जिद है, वहाँ मस्जिद में जाके बहुत अच्छा लगा, वहाँ पे सुकून था। और गोलकोंडा फोर्ट, वहाँ की ब्रीज हवा बहुत ताज़ी हवा थी, तो अच्छा लगा वहाँ के। और हमने बहुत सारे स्टेज शोज़ भी किए, अपना कल्चर रिप्रेजेंट किया, कश्मीरी कल्चर जो हमारा है, फोक सॉन्ग्स हमने रिप्रेजेंट किए। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे आके, यहाँ का खाना, यहाँ का कल्चर और यहाँ का क्या मिलता है कश्मीर से, तो वो है मेहमान नवाजी। हमें भी बहुत अच्छा लगा। आज हमारा यहाँ पर लास्ट प्रोग्राम था, हमें भी बहुत अच्छा लगा। इधर बहुत जगहों पे NYK के थ्रू से हमें उनकी मदद से हम अच्छी जगहों पे गए, हेरिटेजेबल साइट्स है वहाँ पर गए और अपना कल्चर दिखा, अपना कश्मीरी कल्चर, अपना जो मोटो है हमारा वो दिखाया। इन्होंने भी यहाँ पर अपना कल्चर दिखाया, वो देखा हमने, बहुत अच्छा लगा। लोगों के साथ मिले, उनके साथ बातचीत की, वो भी अच्छा लगा। यहाँ का खाना पीना, रहन सहन बहुत अच्छा लगा हमें। हम भी हैदराबाद और आना चाहते हैं। तो अभी आपने यहाँ पर सुना कि किस तरह से एक्सचेंज प्रोग्राम में कश्मीर के तलबा जो हैं वह हैदराबाद पहुंचे और उन्होंने कहा कि वहां पहुंचकर उनको कैसे अच्छा लगा। और सीधे आपको रायपुर ले चलते हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ के नए सीएम के तौर पर भूपेश बघेल जो हैं वो हलफ ले रहे हैं। तो अब शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो चुका है। अवधेश, सभी से निवेदन करते हैं स्थान ग्रहण करने के लिए और राज्य के मुख्य सचिव माननीय श्री अजय सिंह जी को हम आमंत्रित करते हैं शपथ ग्रहण समारोह के संचालन के लिए। माननीय श्री अजय सिंह जी। माननीय राज्यपाल महोदया, कार्यक्रम आरंभ करने के लिए क्या मुझे आपकी अनुमति है? महोदया, नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। निवेदन है कि कृपया नवनियुक्त मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं भूपेश बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेश बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय
छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों तब के सिवाय, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के